Director of Amrita University, Amachi Labs, representing the Mata Amritanandamai Math. Professor Bhavani Rao is an eminent researcher and development practitioner who has been associated with the organization for over more than 20 years. She has been instrumental in developing innovative solutions in the field of vocational skills, education, and women empowerment. In 2009, she set up Amachi Labs, a computer human interaction lab under the auspices of Amrita University, through which Professor Rao has heralded the movement to train women from marginalized units of society to achieve self-sustainable livelihood. We now welcome Mr. Shekhar Kapoor and Ms. Bhavani Rao for this event. We would invite Professor Bhavani Rao to come up on the stage and give us an insight of the humanitarian activities conducted by the Mata Amritanandamai. I'm sure all of you have heard of Amma. Some of you must have met her, but I'm sure all of you have at least heard of Amma. I'm just going to give you a brief overview of the activities that Amma does. And this is more from my perspective, but it should comprehensively cover all the things that Amma does. So I would like you to actually imagine all the things that she does as I'm explaining it to you, because then that will give you a real vision of what Amma's been doing. So basically, you can think of Amma, she is from a fishing village in Kerala. She has pretty much overcome all the kinds of barriers that you could possibly imagine. Gender barrier, educational barriers, socio-economic barriers, caste barriers, and then she's pretty much established a huge network of institutions with one focus is humanitarian aid and alleviation of human suffering. And she's in the process set up about 126 institutions that are geographically dispersed. Again, with the one focus is research-based humanitarian activities. And the one hallmark of Amma is everybody knows that Amma hugs people. So she receives thousands of people per day, and she listens to them, and they express their problems. And it's a tremendous amount of stamina and patience that Amma does it. So she may sit for somewhere like 18 to 22 hours every day, listening to people, listening to their sufferings. And this is actually what has spanned out this entire set of activities that Amma does. So if you just think about it, that she sits and listens pretty much the same problems over and over again. For 22 hours, she's listening to the same kinds of problems, but using that to create a whole system of solutions that can actually address those problems in a very tangible way. And like I said, that this has actually spanned out into 126 institutions. The range of activities that is performed by these 126 institutions itself is phenomenal. And I'm going to kind of, because this is, yeah. Thanks. So it goes from just building of homes. Amma has built over 45,000 homes in 75 locations across of India. She's the amount of free medical aid that has been given to the poor is over $36 million US. The number of people who are fed annually, poor people that are fed annually is more than 10 million in India and 150,000 in the US. The number of pensions that have been given out to people are more than 100,000 women and disabled people receive pensions actively all across India. In India, I would say also in Malaysia, in Kenya, and a few other countries. The number of children that are cared for in orphanages is over 500 in India and over 100 in Kenya. The number of women that have been given financial assistance and vocational training to start up their own enterprises is over a lakh of women in 6,000 self-help groups. You know, all of you, I'm sure, have heard of the Namami Gange project. Amma recently donated 100 crores towards the Namami Gange project, and also another 100 crores towards building toilets in Kerala, so that entire Kerala can be open defecation free. And another
a very strong humanitarian goal of Amma's is disaster relief. And Amma has been active in every single major disaster. Mumbai floods in 2005, the Kashmir earthquake in 2005, Hurricane Katrina in 2005, Gujarat flood in 2006, Bihar floods 2008, West Bengal cyclone 2009, Haiti earthquake 2010, Karnataka floods 2010, Japan tsunami 2011, Shivakashi fire 2012, the Philippine cyclone Haiyan in 2013, the Uttarakhand flash floods in 2013, Turkey flood in 2015, the Nepal earthquake in 2015. I mean, it's every single major disaster event has had very significant, substantial contribution by the MA-MUD, whether it's in terms of home building, whether it's immediate disaster response, entire rehabilitation, including livelihoods. And not just that it was just response in terms of immediate material things, it is rebuilding with a purpose. In 2001, after the Gujarat earthquake, Amma's organization was the one that actually built houses that were earthquake resilient. So the entire design of the building was changed so that they could be they could sustain earthquakes. And that even continued into the tsunami, when the tsunami houses were built, they are tsunami resistant now with 2 floors. And it is not just building back, but building back better. And the thing is that there's not just the width, but there's also so much of depth to what Amma does. Like I said, the range of activities could be so varied, but there is a very strong research bend towards everything. So Amma set up a whole set of education institutions, which the mandate is research, but it's research towards societal welfare. So in the university, every single research topic has one mandate, that it has to have social impact. So every single project, whether it's from nano, biotechnology, medical, education, green technologies, wireless technology, they all have social impact as their ultimate goal. So for example, the entire wireless sensor network department runs huge projects on predicting landslides. Landslide is the hardest disaster in the world to predict. And they have very successful deployments both in Kerala and now they're working in Sikkim to predict landslide. Recently we've had a lot of landslides in Colombo where heavy rains just killed 200 people. And it's a continuous ongoing problem. And so research in Amrita is always targeting the frontiers of where human tragedy is and trying to design solutions to alleviate that kind of a situation. So, and I know, I think you must have all heard about the recent AIDS hand transplants. There's always something new that's happening in terms of research within Amrita. We ourselves are not able to keep up with the number of new things that just keep coming out of it. But the reason why Amma is able to do all these things is that there is such a commitment to. What I'll do is watch a bit of the documentary, and then I'm sure there'll be a lot of questions. And so whatever I have to say, I'll say what rises in your mind rather than what rises in my mind. Is that all right? Yes? Let's watch the video and then you ask the question. Okay, I'll take any questions. I'm not sure I have the answers. If I have the answers, I may not have been. So I will take questions. How do you first get to know about us? Well, if you live in India, you heard about my actually my first interaction came through Bhavani. I have an art installation at Terminal 2 called Jaltara. If you go to Terminal 2, one of the ones on the water I've done, and it was an art installation about water falling down from spouts. And I was looking for a technology in which if you put your hand in the water would give you a musical note. And if you take your hand up and down, it would give you a higher note and lower note. And so you could actually go to the various spouts and play a whole tune. So it had all the notes in it. And I did not know why I needed to help. By the way, that installation had to close down because it had a traffic jam. So everybody was missing their flights.
So I was told that the best haptic technology is at the Amma Institute. And I was very surprised. And then I researched the Amma Institute. I met Bhavani ji, who just met. I was surprised that she would be there. I went and I decided to take a look at online, and I realized the kind of institutes in the higher education they were running. I was taken aback. And then about a year later, I was asked by a friend who had made a commercial for years ago in London, who said, "Are you willing to go and would you do a film on Amma's 60th birthday?" And I said, "Yes, I will." And they said, "How much would you charge?" I said, "No, I won't charge anything. My only condition is that I get a one-on-one interview with Amma. And if you're willing to let me do that, that would be payment enough for me." Because she doesn't do one-on-one interviews. And this is yes. So that's the interview you're watching, and I went there to film the birthday celebrations. I realized that all the world's news channels were there. I had nowhere to put my camera. There was CNN, was there, BBC was there, most of the news channel was there, everybody was there. So I was there with this international crew for 3-4 days, and I said, well, here's a chance, let me just talk to the people. So the documentary came out with no intention except the fact that I was there, and that in itself was a huge lesson for me. That things that are important in your life just happen because you are supposed to be where you are supposed to be, and therefore they happen because you're supposed to do them when you are supposed to. Is that a question or answer? I don't know. So that's how the documentary happened, and that's how I met her. I met her many times since. And yeah, that's how it happened. Thank you for making that happen. शेखर जी, प्रशांत ETV से सबसे पहले बधाई कि वाकई ये गिरफ्तार कर देने वाली, मतलब जब तक हम देख रहे थे ललाटक अम्मा के सम्मान में सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या रही? एक तरफ तो वो पूरी दुनिया को गले लगानी है, एक तरफ वो संसार भी है जो गले लगाने से चल रहा है, लोगों से बात करने से चल रहा है। तो आपके लिए सबसे सरप्राइज क्या रहा पलक पर? मेरे लिए सबसे सरप्राइज ये है कि मैं काफ़ी जब से 12-13 साल का था, ये सवाल मेरे मन में उठते जा रहे थे कि एक तरफ से तो हमें सिखाया जाता है कि इस पूरे संसार में, इस पूरे यूनिवर्स में सब चीज़ वही है, वो चीज़ है जिसको आप नाप तोल सकते हैं तो वही रहती है। That which is can be measured is something, if it cannot be measured it's nothing. तो दिल्ली में रहता था मैं, वहाँ दिल्ली में छत पे गर्मियों में सोते थे और तब पोल्यूशन नहीं था, ना लाइट पोल्यूशन थी ना पोल्यूशन थी उस पर। तो जब आसमान पे देखता था तो पूरा मिल्की वे इफेक्ट, बिल्कुल ऐसा लगता था कि पूरा प्लान है। तो अपने पेरेंट्स और मदर से पूछता था हमेशा कि ये कहाँ से जाती है, ये आसमान कहाँ तक जाता है? उनका आंसर ये था, ये जाता ही रहता है, कभी कम नहीं होता, बंद नहीं होता, इट्स फॉरएवर। तो ये चीज़ फॉरएवर क्या है? तो मैं आज भी वही ढूंढ रहा हूँ। ये फॉरएवर जो चीज़ है, जो फॉरएवर है, जो नापी नहीं जा सकती, जो तोली नहीं जा सकती, जिसमें हम रह सकते हैं, जहाँ सिखाया जाता है कि सब कुछ ज़िंदगी में नाप तोल के ही बनती है, और अगर नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते तो है नहीं। तो वो कौन सी चीज़ है जो है नहीं लेकिन है, और जो है नहीं जो है उसी चक्कर में हम कहानी बनाते रहते हैं। सारी हमारी मिथोलॉजी उसी चीज़ है, कृष्ण का पूरा वो गीता का उद्देश्य उसी चीज़ में। जब अर्जुन ने कहा आप कौन हैं, तो उन्होंने यही कहा कि मैं वो हूँ जो नहीं हूँ और हूँ। तो ये जब सवाल उठते हैं तो आपके मन में आता है कि मैं कौन हूँ जो मैं नहीं हूँ और हूँ, ऐसा क्या सोच सकता है मैं ना हूँ। तो मैं अम्मा से मिला तो इसी सर्च में मिला था। आपका सवाल ये है कि लोग जो एक तरफ से जो गले मिलते हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं गले मिलने से कुछ नहीं होता, वो आपकी रिसेप्शन है। लेकिन जो भवानी जी कह रही थी कि ऐसे एक इंसान है अम्मा जैसी जो ना ही आपसे गले मिलती है, आपको जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है, जो आपको नहीं चाहते मिलना वो नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ से जो वो चीज़ें कर रही हैं, मुझे यही लग रहा था जो मैं डॉक्यूमेंट में पूछ रहा हूँ, आगे आप लेके पूछ रहेंगे ये सब चीज़ें ऐसे ये कैसे कर लेती हैं। मैं थोड़ा सा अंग्रेज़ी में कहता हूँ कि हिंदी में वो ये अंग्रेज़ी के लफ्ज़ होते हैं कंपैशन, तो ये सब थोड़ा अंग्रेज़ी में बात करता हूँ मैं। ये कि ये ऐसे कौन से इंसान हैं जो इतने वक्त में इतना कुछ कर लेते हैं और कैसे करते हैं। जो सवाल वही नहीं करती कि अगर दिन में 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे आप लोगों को हक कर रहे हैं, आप आरती कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं लोगों के साथ,
तो फिर ये जो इंस्टीट्यूट्स आप चला रहे हैं, और मैंने पूछा उनसे जब मैं उनके वहाँ अस्पताल गया तो मैंने कहा ये जो नया वार्ड खुला है ये किसने डिसाइड किया? अम्मा ने। एजुकेशनल का अच्छा ये न्यूक्लियर फिजिक्स का ये जो आप बात कर रहे हैं, जो नया विंग आप खोलने की बात कर रहे हैं, वो किसका डिसीजन? अम्मा का। तो अम्मा से मैंने पूछा कि ये कैसे करते हैं? तो उनका सवाल था कि देयर इज नो ब्रेक दैट मूव्स विदाउट माय नोइंग। ये नहीं था कि देयर इज नो ब्रेक दैट मूव्स विदाउट माय डूइंग, ऐसा नहीं था। तो ये डूइंग कैसे होता है? What is the difference between knowing and doing? सब कुछ मालूम है लेकिन मैं नहीं कर रही, ये मेरे जरिए हो रहा है। ये इंसान कौन सा है? एक इंसान तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक इंसान कर रहा है तो आप में कंपैशन की वजह से क्या हो रहा है आपको, जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है? तो ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि आप कर रहे हैं और आप वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये सब सवाल मेरे मन में आज भी हैं। तो अम्मा से मिलने से कुछ और थोड़े थोड़े आंसर मिलते हैं। कोई मेरिकल नहीं होगा। कुछ लोग के लिए जो हम करते हैं उनके लिए मेरिकल होता है। जो मेरिकल तो वो चीज़ होती है जो रोज़ होती है, लेकिन आप जानते नहीं क्योंकि ह्यूमन माइंड में बॉलीवुड चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। अगर ड्रामा ना हो तो मेरिकल नहीं है, लेकिन आप रोज़ आपका एक नेक्स्ट ब्रेथ एक मेरिकल है। तो ये सब सवाल जो है, तो अम्मा जो कुछ लोग कर रहे हैं वो तो भवानी जी कह उससे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। There's no education, she's not been educated, she has apparently no time. How do you achieve everything in no time? Those are the questions. ओके शेखर जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जीवन में गुरु का होना एक अपने आप में बहुत बड़ी उत्पत्ति है, बहुत बड़ी बात है। जब आप अम्मा से कुछ प्रश्न कर रहे थे और जो उन्होंने आंसर दिए, जो उनको उत्तर थे, तो वो बहुत सामान्य थे। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी भी एक इंसान से कुछ सलाह लें तो आपको बहुत सारी सलाह दे देगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देगा। पर मेरा मानना ये भी है कि जब तक आप उन चीज़ों को अपने जीवन पर लागू नहीं करते तो वो फिर वो बीज ही हो जाता है, वो वृक्ष नहीं बन पाता। आपने आप अम्मा की बातों को समझा, आपने उनसे वार्तालाप किया, आप उनके समक्ष बैठे, तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग कितने बदले, बजाय इसके कि उनकी वो वाली बात बड़ी अच्छी लगी, वो चीज़ बड़ी अच्छी गई थी कि उनसे करवाया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि हम सब में वो ऊर्जा है, जैसा कि अम्मा बता रही थी कि एक ही ऊर्जा होती है, उसको हम रूपांतरित करते हैं विभिन्न प्रकार की दिशाओं में। तो जब आप अम्मा से मिले तो कितने आप संतुष्ट हुए और आपके जीवन में क्या क्रांति घटी, कितने आप शांत हुए, कितने आप मौन रहते हैं, जीवन को आप किस अलग दृष्टिकोण से देखते हैं आप, या फिर सिर्फ ये पड़ाव इतना ही रह जाएगा कि वाह अम्मा जैसे लोग भी यहाँ पे हैं। ये तो हमारा मन हमें एक बहाना दे रहा है कि चलो इसे लेट इट भी, अरे बहुत अच्छी बात है, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप कितने रूपांतरित हुए बजाय इसके कि वो बहुत अच्छी है। आपके जीवन में क्या घटना घटी, क्या क्रांति घटी, इसका उत्तर चाहता हूँ आपसे। हर व्यक्ति का सवाल अपना सवाल होता है। आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं आप खुद से भी पूछ रहे हैं, सही है ना? आप ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं वहाँ से आकर मिलूँ तो मेरे जीवन में क्या होगा जिससे मुझे ऐसा लगे कि मेरा जीवन बदल जाए। तो आप मुझसे पूछ रहे आप गए थे तो आपका क्या बदला? सबका अलग अलग तजुर्बा होता है। मेरा तजुर्बा ये है कि जीवन कदम कदम से बदलता है। स्पिरिचुअलिटी और आपका जो बदलाव है जीवन का कदम कदम से आगे चलता है। वो हम मिरेकल ढूंढते हैं कि अगर मैं किसी ने मेरे सर पर हाथ डाला तो मुझे पूरी जिंदगी मुझे पूरा आसमान के सामने दिख गया। ऐसा कुछ लोगों को होता होगा, मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं हो। मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि ऐसी ज़िंदगी ऐसे आगे बढ़ती है, नहीं बढ़ती, कदम कदम से बढ़ती है। जो बदलाव आता है वो कदम कदम से आता है और रोज़ आपको ये देखते हैं कि आज मेरी ज़िंदगी में ये बदल गया। ऐसा कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है और आपको सच में ऐसा लगता है कि हाँ कुछ बदलाव आ गया है। चुप कर बदलाव आ जाता है। तो मिलने से, जाने से, सोचने से, आगे बढ़ने से, कदम आगे लेने से ऐसे बदलाव आते हैं सबके कोई ऐसी घटना आप जो ढूंढ रहे हैं कि एक दिन आपने मिले और फिर सामने परियां आ गई। ये भी नहीं करके आपको परियां चाहिए, जो जिसको चाहिए वो ऐसे नहीं आता, वो छोटे छोटे करने से आता है। जीवन का सर एक तथ्य ये भी है कि एक बचपन होता है किसी भी मनुष्य का, फिर किशोरावस्था आती है, जवान होता है, फिर वो वृद्धावस्था की वजह अग्रसर होता है। तो डोंट यू थिंक कि एक जीवन का एक ऐसा पड़ाव आ गया है कि अब फिल्में चलो फिल्में बहुत हो गई,
गाने, नाचना गाना, पार्टीज बहुत हो गई, थोड़ा जीवन का ये पहलू भी देख लिया जाए। आपने जो सुबह मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो लोग मुझे एक दूसरे से आप फिल्में क्यों नहीं बनाते हो, आप पूछ रहे हैं कि फिल्में क्यों नहीं बंद कर देते, आप बनाना सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं नहीं। मैं आप समझ रहा हूँ क्या कर रहा है कि ये अगर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आगे जो देखते हैं क्या है, ये तो मेरे लिए my exploration has been going on for years. जो अंदर मेरे हो रहा है, I can sense it happening, and I am allowing. बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, you have to allow yourself. You have to allow it to happen rather than provoke it. You just let yourself go. Let yourself go into the storm and let the storm take you forward. Most of the time you're too afraid. वो डर चले जाता है, वो डर नहीं रहा, फिल्म ना बनाने का डर नहीं रहा, करियर ना होने का डर नहीं रहा, नहीं होगा तो नहीं होगा तो होगा, वो सब डर निकल जाते हैं, आहिस्ते आहिस्ते आप खुल जाते हैं, you become free of fear, and as you become free of fear, then you are free to do what you need to do, and you're free to allow what you need to allow to happen, to let it happen. Do you know what I'm saying? You let life take you forward rather than make life take you forward, because when you say you're going to make life take you forward, you're making your mind that is already polluted with everything that you're thinking about. Then you have to let your mind out of the way. Let it go. Forget your mind. Then that's the biggest issue. How do you get rid of your mind? सर ये चीज़ आपने बताई, और ये आप इंटरव्यू के दौरान भी हमने देखा कि बहुत अच्छा वार्तालाप चल रहा था प्रश्न और उत्तरों का, लेकिन मैं साफ साफ इसलिए एक छोटा सा उत्तर ये चाहता हूँ कि अभी जो जीवन का जो अगला पड़ाव है आपका, जो आपका अगला पड़ाव है, उसकी वजह से आप अग्रसर हो रहे हैं अध्यात्म की ओर, या फिर आपको ये लगता है कि एक लेडी है जो 14-15 घंटे एक ही जगह बैठती है, इतने सब सारे लोगों को हक करती है, ये तो मैंने कहीं नहीं देखा, तो आप इस चीज़ से प्रभावित हुए? मैं प्रभावित इस चीज़ से हुआ कि ये लेडी जब 14-15 घंटे की जगह बैठ जाती है, वो क्या क्या कर रही है लोगों की, कितना कुछ कर रही है, इतना कैसे हो गया, कैसे करते लोग ऐसा, इस चीज़ से प्रभावित। 14-15 घंटे एक जगह बैठ के बात करने से प्रभावित नहीं हुआ, वो तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन बाहर की जो एक्सपीरियंस है मुझे दिखाई दे रहा है, ये सब ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे हो गया, कैसे किया, और ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खुद के लिए नहीं किया, लोगों के लिए किया, और इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं उनसे, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये जो अमेरिका से साइंटिस्ट आ रहे हैं, ये सब अपने लेबॉर्ट्री छोड़ के यहाँ आकर क्यों बैठे हैं, भवानी जी अमेरिका में थी, वहाँ से यहाँ आ गई, क्यों आ गए, क्योंकि लोगों के लिए कुछ करना ही है, ऐसा नहीं बना, ऐसा नहीं कुछ करियर आगे बढ़ा, क्यों कर रहे हैं, क्या मिलता है, ये सब मेरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और ये हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है। सर डायरेक्टर्स की लिस्ट में आप एक आइकन रहे हैं, अगर ये काम आप भी करें, आप एक जगह बैठ जाएं और एक एडवर्टाइजमेंट हो जाए कि ऐसे ऐसे आप अपने जो चाहने वाले वो आपसे मिले, आप उनको हक करें सर, तो इससे सर बहुत एक सामान्य सी बात हो जाएगी कि तो सर ये तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ढूंढ रहे हैं हम, वो सब ज़रूरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होती, जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत, अब आप क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ करेंगे, आई एम नॉट लुकिंग टू डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट ऑल, आई एम जस्ट ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी ऑर्डिनरी, to be ordinary in itself is what we need. To be compassionate, to be orderly, to be loving, to be good, passionate about what you do is a very big achievement. You don't have to be a conqueror. You don't have to become a monk. Just being yourself and being compassionate, honest with yourself, and being a good human being is an extraordinary achievement. But life does not have to be extraordinary beyond that. And if you can achieve that, if I can achieve a certain understanding of who I am, that to me is extraordinary. मैं कौन हूँ? मैं यहाँ कैसे हूँ? मैं इस संसार में, इस यूनिवर्स में, वो जो सवाल जो 12 साल का था उठा था, उसका मैं जवाब दे दूँ तो मैं, मेरे लिए वो चीज़ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, फिल्मों से ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सब चीज़ों से ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो एक सवाल का जवाब मुझे मिल जाए तो उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम होता है। और भी सवाल? ठीक है, Regarding as your director film direction and you have a better as a film also, and you have got so many experience with human life, what is the difference between Mother Teresa and Amrita, my friend?
what is the life of the both of them already as a given the sacrifices, like they on like both others. What is your opinion about it? What do you I never met Mother Teresa. I just actually just passed by her once, and I saw her, but I've never met her. I think ultimately in life we are all great compassionate human beings, and one doesn't have to be better than the other. now you can go to your ये हमारी judgment है अपने आप की. I judge myself, therefore I judge other people. अब Mother Teresa और अम्मा में से who's better? That is my judgment upon myself, not upon them. not better. According what is your experience, whether you have seen or not, I what is feel- your experience about that particular? What is it? Get any when you meet or when you say, Yeah. what is your feeling at that time? That is. To be I do not honest, say who is better, who is best. when Everybody I going watch- about that sacrificial life. See everybody went there. I think when I watch Amma, I have tears in my eyes because of her compassion and what she's done. When I read about what Mother Teresa had done, I had tears in my eyes. I was filled with a sense of joy and compassion because of their presence. I'm filled with a sense of joy and compassion because of Amma's presence. So, I'm being told I have to. Is there one more question? Then I'll take it, and then we have to stop. Right? Okay, शेखर सर, एक there is one more question. Yeah. कि मेरा मानना ये है कि जहाँ तक मैंने आकलन कर पाया है इस वीडियो को देखने के बाद, कि कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा ही आपको कहीं ढूंढ रही है, अब जो आपकी आत्मा है आपको नहीं ढूंढ रही है. अम्मा एक माध्यम हो गई. एक चीज़ कहते हैं कि सुखी होने के लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन दुखी होने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. सही है. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप No, I agree. कि आप भी अपने आप को ढूंढ पा रहे हैं. I'm only going to Amma because I'm in search of myself. Once I find myself, and then maybe I can become more compassionate. I suspect that in search of yourself, if you drop your mind and you drop your ego, you'll find compassion and love. That's my suspicion, and that's why I'm looking to see how I could do it for myself. I am in search, and maybe myself is in search of me. You're right. मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा को ढूंढ रहा हूँ, आत्मा मुझे ढूंढ रही है. वो मेल जोल हो जाए तो बहुत खुश हूँ, वो काफ़ी हो गया. Okay, I have to go. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you so much. शेखर सर सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर यहाँ पे सेंटर पर शेखर सर यहाँ पे सर यहाँ पे यहाँ पे सेंटर सर लेफ्ट साइड Suresh? सर सेंटर सर सेंटर मैम यार शेखर सर, हमने वीडियो देखा और आपकी स्पीच भी सुनी, आप जिस बेबाकी से आपने प्रश्नों को उत्तर दिए, लेकिन एक प्रश्न दिल में ये भी उठता है कि इस चीज़ की, इस अध्यात्म की ओर जब बढ़ रहे थे, तो इसकी पहली घटना आपके जीवन में कब आपको याद आती है? बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो या आपको लगा कभी कि मैं इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हूँ? अगर आपके परिवार से, आपके माता पिता कोई ऐसे हमारी कैसे ये होता है, हम लोग घटना ढूंढते हैं, लेकिन ज़िंदगी में हर चीज़ जो होती है वो एक ही तरफ आपको फिर जगा देती है. आप सो जाते हैं, फिर कोई चीज़ हो जाती, छोटी सी चीज़ होती है जो आप एक छोटा सा प्रश्न भी पूछें तो उसका भी उत्तर देने के लिए आपको जागना पड़ता है थोड़ा. सोते सोते तो उत्तर असली सही सच उत्तर तो नहीं मिलेगा. तो मैं जब 12 साल का था तो दिल्ली में रहता था और फिज़िक्स नई पढ़ाई जा रही थी मुझे, और मुझे यही पढ़ाया जाता था कि जिस चीज़ को आप नाप तोल सकते हैं वही चीज़ होती है.
जिस चीज़ को ना आप नाप सकते हैं, ना तोल सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, वो चीज़ नहीं होती। हम रात को दिल्ली में छत पे सोते थे तो उन दिनों में, गर्मियों के दिनों में छत पे ओस आती थी, थोड़ा सा ठंडा लगता था, लेकिन उन दिनों में पोल्यूशन नहीं थी, ना लाइट पोल्यूशन थी, ना पोल्यूशन। तो रात को जब आप लेट जाते थे तो पूरे आकाश में पूरा वो सब तारे दिखते थे, पूरा मिल्की वे दिखता था। जैसे आजकल अगर आपको लद्दाख जाना पड़ता है वो आसमान देखने के लिए, वो तो दिल्ली से भी दिखता है। तो मैं अपने पेरेंट्स से माँ से पूछता था कि ये कहाँ तक जाता है, तो कहते ये तो चलते जाते हैं, कभी ख़त्म नहीं होता। मैंने कहा पूछा ये ख़त्म नहीं होता, इसे गोज़ ऑन फॉर एवर। तो फिर मैंने ये प्रश्न उठा कि वो चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो तो नापी नहीं जा सकती, तोली नहीं जा सकती, वो क्या है? तो मेरे फिज़िक्स में क्यों मुझे सिखाते हैं कि ये तो मैं रोज़ रात को देखता हूँ, एक चीज़ जो फॉरएवर चलती रहती है, उसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। तो जिस चीज़ का अंत नहीं दिखाई देता तो उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? अगर अंत नहीं है तो शुरुआत भी नहीं हुई। तो ये चीज़ क्या है जिसमें मैं जीता हूँ, लेकिन मुझे कहते हैं लेकिन है नहीं, लेकिन मैं हूँ, ये मुझे ऐसे लगता है। तो अगर वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, अगर वो है लेकिन वो तो है नहीं, क्योंकि उसको नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। तब से मुझे ये सोच है, ये क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, ये मुझे क्यों झूठ बोलते हैं मेरे फिज़िक्स क्लास में, क्यों झूठ बोला जा रहा है? तब से ही सर्च है वो एक। तो तब से मैं कहानी लिखनी शुरू कर दी, क्योंकि हम कहानी इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो जो समझ नहीं आता उसको हम कहानी भी कर देते हैं। जब पहली बार बिजली आई थी तो लोगों ने कहा था कि अरे भगवान नाराज़ हो गए इसलिए बिजली आ रही है, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी। जो चीज़ नहीं समझ आती उसके बारे में कहानी लिख रहा हूँ। शेखर सर, साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, आपकी बातों से ये मालूम पड़ रहा है कि आपका दृष्टिकोण पूर्णतः बदलाव की ओर है और देख सकते हैं कि बदल भी चुका है। तो जब किसी इंसान को कुछ एक सच्चा धन मिल जाता है या कुछ सत्य का प्रकाश मिल जाता है तो उसकी एक उत्कंठा ये भी होती है कि ये चीज़ मैं और लोगों में भी बांटूँ, और लोगों को भी बताऊँ कि जिस चीज़ में तुम हो वो मिथ्या है या एक भ्रम है तुम्हारा, ये सच्चाई है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं जो आपको कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मिथ्या है या भ्रम है, मैं कह रहा हूँ वो आपको ढूंढना है। मिथ्या है या भ्रम है वो तो फिर सिन हो गया, फिर तो वही बात है कि मैं आपको कह रहा हूँ आप गलत है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ आप गलत है, मैं कह रहा हूँ मैं तो अपने खुद को ढूंढ रहा हूँ, और मैं जो खुद को ढूंढ रहा हूँ वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। और मुझे जो लगता है, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो मेरी सोच है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी सोच आपकी होनी चाहिए और आप मिथ्या भ्रम में बैठे हैं, नहीं। और दूसरी चीज़ आपने पूछी कि लोगों में बांट रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैनल तो हैं यहाँ, तो बंट ही रहा है, मैं बांट नहीं रहा। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है कि बांटने से नहीं, बट जाती है, चीज़ें हो जाती हैं। और अक्सर मैंने यही देखा है कि जो चीज़ आप अरे मैं तो प्रचार करूँगा, तो आप प्रचारित हो गए। अब आप प्रचारित हो गए, अब ढूंढिए, फिर आप ब्रांड हो गए, फिर आपको बताना पड़ेगा आप लोग आप प्रचारित नहीं हैं, आप कुछ नहीं है जो नहीं है। लेकिन अगर सच्चाई की तरफ जा रहे हैं तो लोग आएंगे, लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि आप सच्चाई की तरफ जा रहे हैं। आप आ गए आज, क्योंकि मैंने कुछ सच्ची बात कह दी तो आप लोग आ गए। अगर मैं झूठी बात कह रहा तो कहते हैं आज है, अरे भाई अब बुलाओ सबको, सब कुछ बताओ, उसकी पिलाओ, कुछ कहना है मुझे, तो नहीं किया। जब बहुत बड़ी फिल्में करते तो ऐसे ही करते, तो छोटी सी चीज़ें हो गई। लेकिन सर आप कहीं ना कहीं ये नहीं मानेंगे कि हर एक इंसान को बीज से वृक्ष होने का एक मौका देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि एक चीज़ ये भी है, बजाय लोग कहेंगे प्रचार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये आत्मसंतुष्टि देगी। हर इंसान को एक ही चीज़ नहीं, सैकड़ों चीज़ें मिलती हैं, रोज़ मिलती हैं। मुझे तो लोग कहते हैं कि यार कोई मिरेकल दिखाओ, अम्मा को बोलो कोई मिरेकल दिखाओ। मैं कहता हूँ देखो आज सूरज चढ़ा था नहीं। आप किसी मैथमेटिशियन से पूछो कि पूरे संसार में शुरुआत से बिग बैंग से आज तक लेके सूरज इस वक्त चढ़ने के लिए क्या क्या सही जाना चाहिए, आप साल निकाल देंगे, वो इक्वेशन निकालते हैं कि ये सही है, नहीं सही है तो ये नहीं सही। एक साल में आप निकाल देंगे, एक सूरज चढ़ेगा तो कि ये जितनी चीज़ें सही होनी, जितनी इक्वेशंस मैथमेटिक्स सही होनी चाहिए, उसमें 0.0000001% कुछ गलत हो गया, सूरज नहीं आएगा। ये मिरेकल नहीं है तो और क्या है कि रोज़ सही होता है। आप सांस लेते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास जाकर सोचिए कि आपकी मन में, बदन में अगली सांस लेने के लिए क्या क्या सही होना चाहिए, आपके बदन में नहीं, बाहर भी। आप
समुंदर से बाहर हैं, आप समुंदर में नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके हर एक सेल में कुछ एक चीज़ बिल्कुल सही जानी चाहिए ताकि आप अगली सांस ले पाएँ। ये मिरेकल नहीं है, रोज़ तो मिरेकल होते हैं, हम ड्रामा ढूंढते हैं, जो नहीं है वो ढूंढते हैं। तो ये कौन सी चीज़ है जो हम अपने आप को कह रहे हैं भैया स्पिरिचुअल बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनको बोलिए कोई ऐसी चीज़ करके दिखाएं जो नहीं है, और जो है वो हम ढूंढे, अब तो रह गया, जो है उसको क्यों छोड़ के जा रहे हैं। सर चलते अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि क्योंकि आपका दृष्टिकोण बहुत अध्यात्म हो चुका है, तो ये छवि हमें आपकी फिल्मों में देखने को मिलेगी, और मिलेगी तो कौन कौन सी होगी? देखिए हर एक चीज़ में छोटी छोटी चीज़ें तो होती हैं। मैं बैंडेड क्वीन में एक बचपना था जो आप नहीं भूल पाए। जहाँ मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं यार बैंडेड क्वीन जैसी अच्छी पिक्चर बना दो। क्यों कहते हैं? उसमें उसको अपना बचपना दिखाई देता है, वो लोगों का अपना, मेरा ही बचपना था। मैं भी मिस्टर इंडिया सॉरी बैंडेड क्वीन कह रहा हूँ, मैं मिस्टर इंडिया की बात कर रहा हूँ। मिस्टर इंडिया में लोग अपना बचपना देखते हैं, बैंडेड क्वीन में अपनी ही मर्दानगी के ऊपर अपने आप को गालियाँ देते हैं। क्योंकि मैंने अपनी ही मर्दानगी पे अपने आप को गालियाँ दी थी बैंडेड क्वीन में, वही तो बाहर आ गया। मिस्टर इंडिया में मैं अपने बचपन को ढूंढ रहा था, वो बचपना बाहर आ गया, और तो लोग देखते हैं तो उनको अपना बचपना याद आता है। तो अपने आप को आप डालते दीजिए सामने, डालते रहिए। और सर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी बिल ख़त्म करके फिर एक बार फिर कोशिश करूँगा पानी बनाने की, क्योंकि पानी तो बहुत बड़ा मसला है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू।